طاہرہ غصے کے ساتھ دروازہ مارتے ہوئے گھر سے نکل گئی، لیکن شاہد نے بھی اسے جانے سے نہیں روکا۔ وہ جانتا تھا کہ طاہرہ اس کے گھر والوں کے ساتھ راضی نہیں ہے۔ شاہد جو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا، وہیں پر بیٹھا رہا اور دل میں سوچ چکا تھا کہ اگر طاہرہ مجھ سے اور میرے گھر والوں سے راضی ہو ہی نہیں سکتی، میں نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اس محبت کو نبھانے کے لیے۔ جب محبت ہی نہیں، عزت ہی نہیں رہی، تو پھر رشتے کو بھی کیوں گھسیٹنا؟ وہ جانا چاہتی ہے تو پھر میں بھی اسے روکوں گا نہیں۔ وہ بستر کے سرہانے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گہری سوچوں کی دنیا میں کھو گیا۔ جب واحد صاحب اور نسیمہ بیگم اس کے کمرے میں آئے، کمرے کی حالت ایسی بگڑی ہوئی تھی جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں، کیونکہ طاہرہ نے خود کے علاوہ کسی اور چیز پر دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ نسیمہ بیگم کہنے لگیں، شاہد کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا، اور تم کمزور نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ طاہرہ بھی بھاوناؤں میں آ کر چلی گئی ہے۔ دیکھنا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ خود ہی تم سے سمپرک کر لے گی، اس لیے نیچے آؤ، سب کے ساتھ بیٹھو، میں ابھی تمہارا کمرہ فاطمہ سے کہہ کے سیٹ کرواتی ہوں۔ واحد صاحب نے آگے بڑھ کر شاہد کو ساتھ لگایا۔ وہ اپنے پاپا کے ساتھ لگا، بچوں کی طرح رونے لگا۔ کہتے ہیں مرد تب روتا ہے جب وہ بری طرح ٹوٹ جائے، ورنہ مرد کی آنکھ میں جلدی آنسو نہیں آتے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، کہنے لگا، پاپا مجھے کہیں عالیہ مل جائے، اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں پاپا، عالیہ دل کی بہت اچھی اور صاف دل کی ہے، اس نے مجھے بددعائیں نہیں دی ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں ہمیں سزا کے روپ میں اوپر والے کی طرف سے ملتی ہیں۔ میں نے عالیہ جیسے انمول ہیرے کو کھو دیا ہے پاپا۔ آپ کو پتا ہے میں ڈیوٹی پر بھی ہوتا ہوں نا، تو گلیوں میں، چوراہوں میں جہاں بھیڑ ہوتی ہے، وہاں رک کر لوگوں کے چہروں کی طرف پاگلوں کی طرح دیکھتا ہوں کہ کیا پتا کہیں اچانک میری نظر عالیہ پر پڑ جائے اور وہ کسی بھی طرح بس مجھے مل جائے، پھر جو بھی ہو وہ مجھے سزا دے، میں بھگت لوں گا، مگر میں اسے لیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ مگر پاپا وہ مجھے ان 6 مہینوں میں کہیں نظر نہیں آئی، کوئی دن یا رات ایسی نہیں ہے جب میں نے اس کے فون پر کال نہ کی ہو۔ کیوں اتنی بڑی سزا دے کر چلی گئی وہ مجھے؟ روتے ہوئے شاہد کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی رونے لگے۔ نسیمہ بیگم وہیں بستر پر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، بس اب اوپر والے سے ہی امید ہے کہ اوپر والا ہماری بیٹی کو ہم سے ملا دے۔ شاید ابھی ان کی پریکشا ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ادھر عالیہ جو پریگننسی کی حالت میں وہاں پر بچوں کو ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتی تھی اور اپنے حصے کے جو بھی کام تھے وہاں پر شیلٹر ہوم میں سارے اچھی طرح نبھا رہی تھی۔ آج وہ رات کو کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی اور سونے کے لیے لیٹنے لگی، مگر اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنی اور شاہد کی تصویر نکالی، تصویر کو دیکھتی رہی کافی دیر اور شاہد کے چہرے پر چوم کر کہنے لگی، شاہد میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنی ان دوریوں کو ختم کر کے بھاگ کر آپ کے پاس آ کر آپ کے سینے میں منہ چھپا لوں اور اتنا روؤں کہ میرے سارے دکھ دور ہو جائیں، مگر پھر سوچتی ہوں میرے واپس آنے سے پھر آپ دو راہے میں پھنس جائیں گے، کبھی آپ مجھے خوش کریں گے، کبھی طاہرہ کو۔ اس لیے اب مجھے اوپر والے نے آپ کی نشانی سے نواز دیا ہے، میرے پاس شاہد آپ کی نشانی ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے کو محسوس کر رہی تھی اور کہنے لگی، یہ اتنا خوبصورت احساس ہے نا میرے لیے۔ میں جب بھی آپ سے اداس ہوتی ہوں تو خود سے بات کر کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس ہیں، اور جب یہ بچہ میری گود میں آئے گا نا، اس کے چہرے میں مجھے آپ ہی نظر آئیں گے۔ عالیہ اس طرح باتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی جب اس کے کمرے میں زرینہ آئی، جو عالیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ زرینہ ودوا لڑکی تھی۔ عالیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، عالیہ تمہیں پتا ہے نا، تمہیں اس حالت میں تناؤ نہیں لینا چاہیے، ہر برے وچار کو اپنے دماغ سے جھٹک کر اپنی اس آنے والی خوشی کو یاد کر کے خوش رہا کرو۔ عالیہ کہنے لگی، زرینہ آپ ہر مشکل وقت میں مجھے سہارا دیتی ہیں، مجھے بہن یا کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پتہ ہے فاطمہ کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی، ہم لوگ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، اور یہاں پر فاطمہ کی شکل میں مجھے آپ مل گئی ہیں۔ زرینہ نے آج پہلی بار عالیہ کے ہاتھ میں شاہد کی تصویر دیکھی تھی۔ کہنے لگی، پتی تو تمہارا بالکل فلموں کے ہیرو جیسا ہے، پھر ایسا کیا ہوا تم دونوں میں؟
आलिया बोली, हीरो लगते नहीं हैं, वो असल में हीरो हैं। बस कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती और कुछ ऐसा हो जाता है। मगर शाहिद बहुत अच्छे इंसान हैं। जरीना ने एक नज़र आलिया को देखा और उठकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। आज ताहिरा को अपनी माँ के घर 10 दिन होने वाले थे। ना तो शाहिद ने कोई कॉल की थी और न ताहिरा ने। मगर ताहिरा को आज ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है। शादी के 6 महीने बाद उसे ये खुशखबरी मिली तो वो शाहिद को कॉल करके कहने लगी। शाहिद ने बिना कोई भाव दिए कहा, हाँ ताहिरा कहो, क्या कहना चाहती हो? वो कहने लगी, मैं तुम्हें एक खबर देना चाहती हूँ। शाहिद, तुम बाप बनने वाले हो। ये वो खबर थी जिसने इतने समय बाद शाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी और शाहिद ताहिरा से ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। वो कहने लगा, ताहिरा तुम सच कह रही हो ना? वो कहने लगी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। शाहिद सब कुछ भुलाते हुए कहने लगा, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहो और बिना किसी लड़ाई के तुम घर वापस आओगी। देखो, अगर ऊपर वाले ने हमें इतने समय बाद कोई खुशी दी है तो फिर हमें भी ये लड़ाई झगड़ा छोड़ देना चाहिए। ताहिरा ने कोई जवाब न दिया। शाम को शाहिद ताहिरा को साथ घर ले आया। उन दोनों को साथ देखकर और उनके चेहरे पर खुशी देखकर शाहिद के माँ बाप शांत हुए और कहने लगे, ताहिरा बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। जिस दिन से तुम गई हो ना, शाहिद का दिल ही नहीं लग रहा था। ताहिरा आगे बढ़ी और कहने लगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अंकल आंटी, मैंने उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया था, मगर मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। इतने में शाहिद ने मिठाई का डिब्बा निकाला और कहने लगा, पापा आप दादा बनने वाले हैं। इतने समय के बाद सब लोग खुश हुए थे और ताहिरा भी कुछ हद तक सामान्य रहने लगी थी। शाहिद थाने पहुंचा तो उसे खबर मिली कि उसका दिल्ली से तबादला हो गया है और अब वो दिल्ली नहीं बल्कि उसकी पोस्टिंग मुंबई में हो गई है। शाहिद ने बहुत कोशिश की कि वो दिल्ली में ही रहे, मगर वो सारे परिवार को छोड़कर मुंबई अकेला कैसे जाएगा। मगर वो सब उसके हाथ में तो नहीं था। घर शाम को आते हुए उसने अपने माँ बाप को बताया कि पापा मेरा दिल्ली से तबादला हो गया है मुंबई में। वाहिद साहब थोड़े परेशान भी हुए और कहने लगे, ऐसे कैसे अचानक? वो कहने लगा, पापा मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा तबादला रुक जाए, मगर आदेश आया था और इसी हफ्ते मुझे मुंबई शिफ्ट होना है। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता। एक काम करते हैं, हम पूरे परिवार के साथ मुंबई चले जाते हैं, क्योंकि मुंबई से दिल्ली आना जाना फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाहिद साहब कहने लगे, तुम एक काम करो बेटा, ताहिरा को अपने साथ ले जाओ, हम लोगों से कभी कभी मिलने आते रहना। वो कहने लगा, नहीं पापा, आप भी तो घर में ही होते हैं ना, यहाँ कौन सा किसी को कोई ज़रूरी काम है, इसलिए आप सब लोग भी मेरे साथ चलेंगे। अपनी पैकिंग कर लीजिए, वहाँ हम रहने के लिए फ्लैट देखेंगे जहाँ सारा परिवार एक साथ रहेगा। शाहिद और उसका सारा परिवार मुंबई में शिफ्ट हुआ और जिंदगी यूं ही सामान्य के अनुसार चलती रही। 3 महीने उन लोगों को मुंबई आए हुए हो गए थे। आज आलिया अस्पताल में जांच करवाने गई थी क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया था। आज या कल में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। आलिया के साथ जरीना भी थी। आलिया जैसे ही जांच करवाकर बाहर निकलने लगी तो उसकी नज़र सामने शाहिद और ताहिरा पर पड़ी। उन दोनों को एक साथ देखकर आलिया की आंखें नम हो गईं। वो एकदम अपना चेहरा छुपाने लगी। शाहिद और ताहिरा डॉक्टर के पास जांच के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे थे। आलिया के तो जैसे कदमों तले जमीन निकल गई। वो कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है, शाहिद और यहाँ मुंबई में? आलिया ने जल्दी से अपना मुंह छुपाया और जरीना का हाथ पकड़कर शाहिद के बिल्कुल सामने से गुजरी। जैसे ही आलिया शाहिद के करीब से गुजरी, शाहिद के दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने आलिया की तरफ देखा, मगर उसने पूरी तरह से खुद को छुपाया हुआ था। वो पहचान नहीं पाया। आलिया तेज तेज कदमों से चलते हुए अस्पताल से बाहर निकलने लगी। जब जरीना ने पीछे से आवाज दी, आलिया क्या हो गया यार, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? आलिया का नाम सुनते ही शाहिद को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, मगर वो कहने लगा, ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। फिर शाहिद से रहा न गया, वो उठकर अस्पताल के बाहर तक आया। जब तक वो दोनों रक्शे में बैठकर चली गईं, शाहिद का पूरा ध्यान उन दोनों लड़कियों की तरफ था। ताहिरा ने आवाज दी, शाहिद कहाँ रह गए हो? शाहिद खुद को कहने लगा, ये मेरी गलतफहमी हो सकती है। आलिया यहाँ कैसे? वो वापस पलटा। ताहिरा का जांच करवाया गया और वापस घर आ गया। सारे रास्ते भी उसके दिमाग में यही विचार रहा कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो आलिया ही थी।
क्यों मैंने उस लड़की का पीछा नहीं किया? क्या पता वो आलिया ही हो और मेरी तलाश आज खत्म हो जाती। वो बेचैनी की हालत में ताहिरा को घर छोड़कर कहने लगा, ताहिरा मैं अभी आता हूँ। वो कहने लगी, शाहिद क्या बात है? जब तुम मेरे साथ अस्पताल गए थे तब तो मूड ठीक ठाक था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल खामोश हो गए? मगर शाहिद के दिमाग में उस वक्त एक अलग ही जंग चल रही थी। उसने सोचा कि बेशक उसकी ये गलतफहमी ही सही, लेकिन वो पता ज़रूर लगाएगा। शाहिद उसी अस्पताल में वापस गया। वहां जाकर पूछने लगा कि आज यहाँ पर कौन कौन से मरीज आए हैं, क्या आप उनके नाम मुझे बता सकती हैं? रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने कहा, सर हमें ये अनुमति नहीं है कि हम इतनी जानकारी दें। शाहिद ने अपना कार्ड आगे करके दिखाया। वो एसपी था। शाहिद का नाम देखते ही उस लड़की ने कहा, ठीक है सर, मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। शाहिद खुद कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने लगा कि जब एक मरीज आलिया भी सामने आई। शाहिद अपने हाथों को जोर से टेबल पर मारते हुए कहने लगा, तो इसका मतलब वो आलिया ही थी और आलिया की हालत वो देख चुका था कि वो प्रेग्नेंट थी। शाहिद बौखला कर रह गया। कहने लगा, ये मरीज क्या यहाँ हमेशा आती हैं? उन्होंने कहा, जी सर, उनकी प्रेगनेंसी के सारे टेस्ट और जांच यहीं पर हो रहे हैं, हमारी डॉक्टर के पास। शाहिद कहने लगा, क्या इनका कोई एड्रेस या कोई नंबर है आपके पास? वो कहने लगी, नहीं सर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बस उनका नाम दर्ज होता है यहाँ। शाहिद वहाँ से उठा और डॉक्टर के पास गया। आलिया का नाम और सब कुछ बताते हुए कहने लगा, आज जिस लड़की की आपने जांच की, आलिया नाम की, क्या मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी पता चल सकती है? डॉक्टर कहने लगी, देखिए सर, हम इस तरह अपने किसी भी मरीज की कोई भी जानकारी लीक नहीं करते, ये हमारे नियम हैं। शाहिद कहने लगा, मैं उसका हस्बैंड हूँ, इसलिए प्लीज़। शाहिद ने अपना परिचय भी कराया तो डॉक्टर कुछ बेचैनी सी महसूस करते हुए कहने लगी, देखिए सर, मैं सच में उनका संपर्क नंबर या पता आपको नहीं दे सकती। हाँ, मगर इतनी मदद आपकी ज़रूर कर सकती हूँ कि उनकी डिलीवरी का वक्त आ गया है और वो 1-2 दिन में दोबारा अस्पताल ज़रूर आएंगी। शाहिद ने जल्दी से अपना नंबर डॉक्टर को दिया और कहा, जैसे ही वो अस्पताल में आए, आपने मुझे फ़ौरन से फ़ोन करना है। डॉक्टर कहने लगी, देखिए सर, ये हमारा अस्पताल है और लोगों का हम पर यकीन है, कहीं आप कुछ उनके साथ गलत। शाहिद कहने लगा, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैं एसपी शाहिद हूँ और वो मेरी बीवी है। मेरी और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं बता सकता, इसलिए प्लीज़ आपसे जितना कहा है आप उतना कीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही वो दोबारा आएंगी मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। शाहिद की बेचैनियाँ उरूज पर थीं। उसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि वो और 2 दिन इंतज़ार करे। ना तो वो ड्यूटी पर ध्यान दे रहा था, अब उसके चेहरे पर एक सुकून भी था और एक जिज्ञासा भी थी। सोचने लगा, यानी कि वो माँ बनने वाली थी और उसने इतना समय अकेले गुजारा। कैसे वो अकेले सब कुछ संभालती रही और कहाँ रह रही है? शाहिद ने अभी अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो चाहता था पहले वो खुद पुष्टि कर ले, वो आलिया को ढूंढे और फिर सबको बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। अब उसे बेसब्री से डॉक्टर की कॉल का इंतजार था। उधर आलिया ने ये सोचा कि वो अब उस अस्पताल में दोबारा नहीं जाएगी, क्योंकि वो शाहिद को देख चुकी थी और उसे लगा कि ये ना हो कि मैं दोबारा उस अस्पताल में जाऊं तो शाहिद से आमना सामना ना हो जाए। वो खुद से ये वादा कर चुकी थी कि वो आज के बाद उसके सामने कभी नहीं आएगी। 2 दिन भी गुजर गए। शाहिद दोबारा से उसी हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर से कहने लगा, देखिए डॉक्टर साहिबा, थक गया हूँ मैं इंतज़ार करके और आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे इंतज़ार करने का कह के आपने मुझे बताया ही नहीं? डॉक्टर कहने लगी, मैं खुद परेशान हूँ, वो दोबारा हॉस्पिटल में आई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने सारे चेकअप मुझसे ही कराए थे और अब तो उनकी डिलीवरी का वक्त भी आ गया है। मैं खुद हैरान हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। शाहिद कहने लगा, आपके पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? वो कहने लगी, कॉन्टैक्ट तो उसने कई बार मुझसे किया, लेकिन वो क्या है ना, इतने पेशेंट के नंबर मोबाइल में शो नहीं कर सकती और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका नंबर कौन सा होगा। शाहिद की बेबसी की इंतहा हो चुकी थी। पहले तो सिर्फ आलिया का था और अब उसके साथ उसके बच्चे की भी फिक्र होने लगी थी। वो बेइंतहा परेशान हो गया था। शाहिद ने अपने पुलिस के ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उस इलाके के नज़दीक जितने भी हॉस्पिटल थे सबको ये पैगाम पहुंचा दिया कि आलिया नाम और उसकी तस्वीर देते हुए कहा,
जैसे ही ये लड़की हॉस्पिटल में आए मुझसे कांटेक्ट किया जाए। जितना आलिया छुपाना चाह रही थी शाहिद से, शाहिद उसे ढूंढने के लिए हर हद पार कर रहा था। वो पुलिस वाला था, ऐसे तो नहीं हाथ पर हाथ रख के बैठ सकता था। खैर वो शाम को घर लौटा। उसके चेहरे पर बेयकीनी और उदासी देखकर वाहिद साहब कहने लगे, क्या बात है बेटा? वो कहने लगा, नहीं बाबा कोई बात नहीं, नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो सब कुछ सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो अभी किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। रात के 2 बज रहे थे जब शाहिद के फ़ोन पर बेल बजी। शाहिद सो रहा था। ताहिरा के कानों में जैसे ही आवाज़ आई उसने फ़ोन उठाया। आगे से किसी औरत की आवाज़ थी। वो कहने लगी, सर आपने जिस लड़की का कहा था वो अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ी ही देर में उनका ऑपरेशन होने वाला है। ताहिरा हैरत से बोली, आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जब डॉक्टर ने बताया कि एसपी शाहिद की तरफ से ये ऑर्डर था कि वो पेशेंट जैसे ही हमारे हॉस्पिटल में आए हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें, इसलिए हमने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया है। आप कौन हैं प्लीज़ शाहिद सर से बात करा दीजिए। ताहिरा के जहन में आलिया का कोई दूर तक नामो निशान नहीं था। उसे लगा शायद शाहिद का कोई केस होगा। उसने शाहिद को हिलाया और कहने लगी, शाहिद कॉल है किसी हॉस्पिटल से। ये आवाज़ शाहिद के कानों में पड़ते ही वो एकदम उठकर बैठ गया। शाहिद ऐसे उठकर बैठा कि जैसे वो कभी सोया ही ना हो। वो जल्दी से फ़ोन पकड़कर कान पर लगाकर कहने लगा, हेलो। डॉक्टर कहने लगी, शाहिद सर, आपने जिस लड़की का हमें तस्वीर दी थी वो लड़की हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जल्द से जल्द हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। शाहिद बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूं। आप उसे किसी भी तरह की कोई खबर नहीं देंगी और देखें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फिक्र न करें। शाहिद रात के 2 बजे अपना ड्रेस चेंज करता हुआ जल्दी से घर से निकल गया। ताहिरा हैरान हुई कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी की शाहिद ने आओ देखा न ताओ और बिना कुछ बताए घर से चला गया। शाहिद हॉस्पिटल पहुंचा। तब तक आलिया का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। डॉक्टर कहने लगी, प्लीज़ शाहिद सर आप बाहर ही वेट कीजिएगा। बाहर वेटिंग एरिया में जरीना भी खड़ी थी। जरीना ने जैसे ही शाहिद को देखा तो वो उसे फौरन पता चल गया क्योंकि उसने शाहिद को तस्वीर में देखा था। वो शाहिद के पास आई और कहने लगी, आप यहाँ? शाहिद ने हैरानी से जरीना से पूछा, आप कौन हैं? जरीना बोली, आप आलिया के शौहर हैं ना? इतनी अच्छी और मासूम बीवी को आपने क्यों छोड़ा धक्के खाने के लिए? आज उसकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई है कि दुआ कीजिए अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। शाहिद बोला, आलिया रहती कहाँ है? वो जरीना से हर बात पूछने लगा और जरीना उसे सब कुछ बता रही थी कि कैसे पहली बार आलिया वहाँ पर आई और क्या हालत थी उसकी और कैसे रो रो कर उसने इतना अरसा गुजारा। जरीना बताने लगी, शाहिद भाई आप नहीं जानते, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब आलिया आपकी याद में रोई न हो। हम दोनों ने ये अरसा एक कमरे में गुजारा है और मैं उसे शाम से मजबूर कर रही थी अस्पताल आने के लिए क्योंकि उसकी आज सुबह से हालत बहुत ख़राब थी, मगर वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। अब रात के वक्त वो इसलिए आई ताकि उसे कोई यहाँ ना देख पाए। शाहिद बेंच पर बैठा अपना चेहरा अपने हाथों में लिए रोते हुए ऊपर वाले से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या खुदा अब अगर आलिया को कुछ हो गया तो मैं सच में उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतने टाइम से मुझे एक उम्मीद लगी हुई थी कि एक न एक दिन आलिया मुझे ज़रूर मिलेगी, मगर आज वो मेरे करीब है, मेरे पास है, मगर उसकी हालत ऐसी है कि ना तो वो मुझे देख पा रही है और ना मैं उसे। शाहिद अस्पताल के बाहर बैठा अपना चेहरा अपने हाथों में लिए गिड़गिड़ाकर अपने ऊपर वाले से दुआएं मांग रहा था, आलिया की ज़िंदगी की और अपने बच्चे की। इतने टाइम बाद वो आलिया को देखने के लिए तड़प रहा था। जरीना कहने लगी, शाहिद भाई आप हौसला रखें, अल्लाह ने चाहा तो आलिया को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जो हड़बड़ाहट में बाहर आई और कहने लगी, शाहिद सर। शाहिद जल्दी से उठा और डॉक्टर के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर कैसी है आलिया? डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ देखकर शाहिद कहने लगा, खुदा का वास्ता है कोई ऐसी बात मत कहिएगा जिसे मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। डॉक्टर बोली, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है शाहिद सर। मगर शाहिद को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। वो लड़खड़ाते हुए पीछे दीवार से जा लगा। कहने लगा, लेकिन क्या? डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी होश में नहीं आ रही, उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। मगर
शाहिद फिर कहने लगा, प्लीज डॉक्टर एक ही बार में सारी बात बता दीजिए, क्या हुआ है मेरे बच्चे को। वो कहने लगी, आपके बच्चे की ऑक्सीजन रुक गई थी, जिसकी वजह से अब उसकी सांस लेने में बहुत समस्या हो रही है। पहले तो हमें ये लगा कि आपका बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, मगर ऊपर वाले ने उम्मीद दिलाई और आपका बच्चा निगरानी में है। उसके फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। शाहिद कहने लगा, आलिया कैसी है। वो कहने लगी, ऑपरेशन तो सफल रहा, आपकी पत्नी खतरे से बाहर हैं, अभी होश में नहीं है। 1-2 घंटे तक वो होश में आ जाएंगी, तो आप उनसे मिल सकते हैं। कुछ हद तक शाहिद को अपनी सांसों पर राहत महसूस हुई और वो वहीं ज़मीन पर अपने खुदा के सामने हाथ फैलाकर बैठ गया। शाहिद की हालत देखकर जरीना काफ़ी सहम गई थी। कहने लगी, अगर इतनी मोहब्बत है दोनों में तो फिर दूरियां क्यों। खैर वो आगे बढ़ी और शाहिद को हौसला देते हुए कहने लगी, शाहिद भाई, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। ऊपर वाले ने आलिया को दोबारा जिंदगी अता कर दी है और देखना आपका बेटा भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। सुबह फजर की अजान होने वाली थी जब आलिया को होश आया था। शाहिद तब तक घर में अपने माँ बाप को फ़ोन करने लगा। वाहिद साहब फ़ोन रिसीव करके कहने लगे, शाहिद कहाँ हो तुम, मुझे तो लगा तुम अपने घर में हो गए। वो कहने लगा, पापा मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, इसलिए अब ये बात ध्यान से सुनिएगा। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर बैठ गए और कहने लगे, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा। वो कहने लगा, हाँ सब कुछ ठीक है और ऊपर वाले ने हम सबकी दुआएं भी सुन ली हैं। पापा, शाहिद की आवाज़ में नमी को महसूस करते हुए वाहिद साहब बोले, शाहिद तुम कहाँ पर हो और क्या बात है, जल्दी बताओ। वो कहने लगा, पापा मैं अस्पताल में हूँ। वाहिद साहब के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि शाहिद उनको क्या खबर देने वाला है। वो कहने लगे, अस्पताल में सब कुछ ठीक तो है ना। शाहिद बोला, जी पापा सब कुछ ठीक है, मैं आपको एक हॉस्पिटल का एड्रेस दे रहा हूँ, आप जल्दी से वहाँ सबको लेकर पहुँच जाइए। वो कहने लगे, बेटा बताओ तो सही क्या बात है। वो कहने लगा, जब आप पहुँचेंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा, प्लीज़ आप अम्मी और फातिमा को साथ लेकर आइएगा। ताहिरा जो अपने बेडरूम में सो रही थी इस बात से बेखबर। खैर वाहिद साहब ने जल्दी से नसीमा बेगम को जगाया और कहने लगे, हमें फ़ौरन अस्पताल जाना है। वो हड़बड़ाहट में कहने लगी, खैरियत तो है ना। वो बोले, हाँ ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। खैर वो सब लोग घर से निकले। उधर डॉक्टर शाहिद से कहने लगा, शाहिद साहब आपकी बीवी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। शाहिद जल्दी से बेचैनी की हालत में कमरे में गया। वो खुद में हिम्मत और हौसला जमा करते हुए आलिया के पास जाने लगा। आलिया भी इस बात से अनजान थी कि शायद यहाँ पर मौजूद है। वो अपनी आंखें बंद किए अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद वो इस वक्त याद कर रही थी शाहिद को। अपने ही विचारों में सोचने लगी, अगर शाहिद इस वक्त पास होते तो वो कितना खुश होते अपने बच्चे को देखकर। शायद ये सब खुशियाँ मेरी किस्मत में नहीं हैं। आलिया की आंखों से जैसे ही आंसू गिरे, शाहिद ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। अपने चेहरे पर हाथों को महसूस करते हुए आलिया ने जल्दी से आंखें खोलीं। अपने सामने शाहिद को देखकर उसे यकीन न हुआ। उसे ये सब सपना सा लगा कि वो होश में नहीं है और सपना देख रही है। जब शाहिद ने आंखों में आंसू लिए, आलिया के माथे पर अपने होंठ रखे, वो अपनी आंखें बंद कर गई। आलिया की आंखों से आंसू गिरे जो तकिए को सोख गए और उस वक्त आलिया के बस में भी नहीं था कि वो कहीं छुप जाए। शाहिद उसके चेहरे की तरफ गौर से देखता हुआ बस आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। वो फिर आलिया के चेहरे पर झुका, उसके माथे के साथ अपना माथा लगाए हुए न जाने कितनी देर तक वो रोकर अपने अंदर की भड़ास को निकाल रहा था। मगर फिर वो आलिया से कहने लगा, आलिया जिससे मोहब्बत करो उसे ऐसे तड़पाया तो नहीं जाता। ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया कि तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जाने से मुझे मेरी खुशियाँ मिल जाएंगी। क्या कभी तुम्हें ये एहसास होने दिया कि तुम मेरी खुशियों की रुकावट हो। वो बार बार उसके माथे को चूम रहा था, कभी आलिया के हाथों को चूम रहा था। कहने लगा, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा ना बचता। आलिया अपनी जुबान से कोई शब्द कह नहीं पाई और बड़ी मुश्किल से अपने हाथ जोड़ते हुए शाहिद से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, शाहिद उस वक्त मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। डॉक्टर जो जांच करने के लिए कमरे में आई, वो आलिया को रोते हुए देखकर शाहिद से कहने लगी, शाहिद सर प्लीज़ आपसे अनुरोध है, फ़िलहाल इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना दें। इनकी हालत अभी बहुत नाजुक है, इसलिए आपसे जितनी कोशिश हो सके आप इनके मूड को बेहतर रखने की कोशिश करें।
شاہد نے پوچھا کیا میں اپنے بچے کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی جی ضرور۔ شاہد بچے کے وارڈ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے گیا۔ وہ پھول سا نازک، ابھی وہ نگرانی میں تھا، اسے گود میں نہیں لے پایا، مگر وہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو راحت دینے لگا کہ اتنی دیر میں واحد صاحب باقی سب لوگ بھی اسپتال آ گئے۔ شاہد باہر آیا اور واحد صاحب کہنے لگے شاہد کیا ہوا ہے کہ تم نے اس وقت ہمیں یہاں بلایا، اور کون ہے اسپتال میں؟ شاہد بنا کچھ کہے اپنے پاپا کے گلے لگ گیا، اور آج وہ دکھ سے نہیں خوشی سے رو رہا تھا۔ شاہد بھول گیا کہ وہ ایک ایس پی، اتنے بڑے پد پر ایک رعبدار پولیس والا ہے۔ وہ سب کچھ بولتے ہوئے اس وقت صرف ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا، جسے اس کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے اور وہ خوشی سے ناچتا ہے۔ وہ اپنے پاپا کے گلے لگے روتا رہا۔ واحد صاحب نے 2-3 بار کہا کیا بات ہے شاہد، بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگا پاپا وہ عالیہ۔ عالیہ کا نام سنتے ہی سب چونک گئے، کہنے لگے کیا مطلب؟ اسپتال میں عالیہ ہے؟ کیا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہد اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور بولا پاپا خدا نے ہمیں ہمارے صبر کا پھل دے دیا ہے، اور امی آپ سب کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، ہمیں عالیہ مل گئی ہے۔ سب کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، سب کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ نسیمہ بیگم وہیں بینچ پر بیٹھ گئیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی خوشی، دکھ، آنسو ملے جلے بھاؤ تھے جب اگلی خبر نے اور خوشیوں سے ان کی جھولیوں کو بھر دیا تھا۔ واحد صاحب بولے وہ ٹھیک تو ہے نا، مگر عالیہ اسپتال میں کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا پاپا اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا ہے، آپ کو پتا ہے آپ دادا بن گئے ہیں، آپ کا شاہد باپ بن گیا ہے۔ سب کے چہروں پر اوشواس، خوشی، ملے جلے بھاؤ تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ جب سب لوگ عالیہ کے پاس گئے، اس کے بستر کے پاس کھڑے واحد صاحب نے آگے بڑھ کر عالیہ کے سر پر پیار کیا، کہنے لگے عالیہ کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ تمہیں پتا ہے ہم سب کی کیا حالت ہو گئی تھی تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تم نے ذرا بھی ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ عالیہ کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی، مگر اس نے جس وقت یہ فیصلہ لیا وہ بھی تو بے بس ہو گئی تھی۔ شاہد کو کیسے برداشت کر سکتی تھی کسی دوسری عورت کے پاس؟ نسیمہ بیگم اپنی بیٹی کو بار بار چوم رہی تھیں۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کا انتظار آج ختم کروا دیا اور دوہری خوشی سے نواز دیا۔ خیر شاہد اسپتال میں ہی عالیہ کے پاس رکا ہوا تھا، اور باقی سب لوگ تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس آ گئے، کیونکہ عالیہ کو ابھی 2 دن بعد چھٹی ملنی تھی۔ جب سب لوگ گھر پہنچے تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ان سب کو اس وقت گھر آتا دیکھ کر اور ان کے چہروں پر ایک الگ طرح کی خوشی کو دیکھ کر طاہرہ کہنے لگی آنٹی آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، کہاں گئے تھے سب؟ اور شاہد بھی رات کو 2 بجے گھر سے غائب ہو گئے تھے، نہ جانے وہ کہاں پر ہیں، نہ انہوں نے کوئی کال کی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ آپ لوگ خوش بھی نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ نسیمہ بیگم کہنے لگی نہیں طاہرہ بیٹی، ہمیں تو خود سب کچھ بہت اچانک میں پتہ چلا، اور تم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اس لیے ہم لوگ چلے گئے۔ اللہ نے آج کے دن ہمیں جس خوشی سے نوازا ہے، اس کے لیے ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ طاہرہ کی جگیاسا اور بڑھی اور سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کون سی خبر ہے جس نے سب کو اتنا خوش کر دیا ہے؟ کہنے لگی آنٹی جی کیا میں اس پریوار کا حصہ نہیں ہوں؟ مجھے نہیں بتائیں گی؟ واحد صاحب کہنے لگے طاہرہ بیٹی وہ عالیہ مل گئی ہے۔ طاہرہ کے چہرے کے رنگ بالکل اڑ گئے تھے، مگر وہ چہرے پر خوشی لاتے ہوئے کہنے لگی کیا سچ میں؟ کہاں ہے وہ ابھی؟ کیا شاہد اسی کے پاس ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، اس کی حالت کافی خراب تھی، وہ اسپتال میں 1-2 دن رہے گی اور پھر گھر آ جائے گی۔ وہ کہنے لگی اسپتال میں کیا ہوا ہے عالیہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نسیمہ بیگم خوشی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی عالیہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو پیدا کیا ہے۔ مجھے تو یہ بار بار کے وچار آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے ایسی حالت میں گھر سے دور رہ کر نہ جانے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا، اپنے بچے کی رکشا کی، مگر شکر ہے اللہ کا اس کے اس مشکل وقت میں ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ طاہرہ اور حیرت کا جھٹکا کھاتے ہوئے بولی وہ کہاں سے؟ نسیمہ بیگم کہنے لگی کیا مطلب کہاں سے؟ ہم لوگ اس بات سے انجان تھے کہ جب وہ اس گھر سے گئی تھی تب وہ پریگننٹ تھی، اس لیے تمہاری طرح ہم سب کو بھی یہ سرپرائز ہی ملا ہے، اور خدا کا شکر ہے
جس نے ہمارے صبر کے بدلے ہمیں دوہری خوشی سے نواز دیا۔ خیر گھر میں بہت سارے انتظام کیے گئے۔ اللہ نے اگر اتنی بڑی خوشی دی ہے تو ہم اس کو بہت اچھے سے منائیں گے۔ طاہرہ وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر بیٹھی غصے کے ساتھ بیڈ شیٹ کو اکٹھا کرتے ہوئے تکیوں کو اٹھا کر فرش پر مارنے لگی۔ کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ واپس آ گئی اور اوپر سے یہ بچہ، یہ سب کیا ہے؟ میں ایسے کیسے کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ عالیہ اس گھر میں آئے اور اس کا بچہ سب اسے ایسے ناز نخروں سے سر پر اٹھا لیں گے کہ نہ جانے وہ کون سا کارنامہ نبھا کر آ رہی ہے۔ اس گھر میں بس میری اولاد کی جگہ ہوگی۔ طاہرہ نفرت میں حد پار کر رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی اس بات کو کہ وہ شاہد سے اگر محبت کرتی ہے تو پھر شاہد کی خوشیوں کا خیال بھی رکھے گی، کیونکہ شاید طاہرہ بہت سوارتھی ہو گئی تھی اور وہ خود پر نینترن بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ خود سے بات کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ میں کچھ ایسا کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ابھی میں ظاہری طور پر سب کے سامنے خوش رہنے کی ایکٹنگ کروں گی اور یہ ظاہر کروں گی کہ عالیہ واپس آنے کی خوشی میں مجھے بھی اتنی ہی خوشی ہے جتنی کہ باقی سب لوگوں کو ہے۔ اس کے بچے کو بھی بہت اچھے طریقے سے گھر میں سواگت کروں گی تاکہ بعد میں کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ طاہرہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے بولی، طاہرہ اب وقت رونے کا نہیں ہے، ان سب کو رلانے کا ہے۔ شاہد عالیہ کے پاس اسپتال میں اس کے بستر کے پاس اسٹول پر بیٹھا عالیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا، عالیہ کیا تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی، آپ کے علاوہ کچھ اور یاد آتا ہی نہیں تھا۔ بولی شاہد، مگر آپ جانتے ہیں میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، کہاں گئی تھی تم؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا میں نے تمہیں۔ جب سے تم گھر سے گئی ہو آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اور دیکھو کوشش کبھی ویرتھ نہیں جاتی۔ اللہ نے مجھے میری کوششوں کا پھل دے دیا ہے اور میں اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، مگر عالیہ یہ سمے جیسے میں نے گزارا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرا ہر دن، میری ہر رات ایسی تھی جیسے کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے، مجھے کھا رہی ہے۔ میری زندگی سے خوشیاں ودا ہو گئی تھیں، تمہارے ساتھ ہی تمہارے ساتھ زندگی کی شروعات کی تو دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ڈیوٹی پر جاتا تو جلدی ہوتی تھی کہ گھر پہنچ جاؤں، مگر جب تم چلی گئیں تو نہ میرا ڈیوٹی پر دل لگتا تھا اور نہ گھر آنے کو دل چاہتا تھا۔ عالیہ بات کو بدلتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے پاس آپ کی بیوی تھی نا، اس لیے تو میں آپ سے دور ہوئی تھی۔ کہاں ہے طاہرہ؟ وہ کہنے لگا، طاہرہ نے کہاں جانا ہے، گھر پر ہی ہے وہ۔ کہنے لگی، تو پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ کو آپ کی محبت ملی، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی محبت ملتی ہے۔ شاہد بولا، عالیہ جو محبت تم نے دی ہے نا مجھے، اس محبت کے بعد محبت کا مطلب مجھے سمجھ آیا ہے۔ یہ جو چکنی چپڑی باتیں کر کے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی، یہ سب محبت نہیں ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور محبت میں اس تڑپ نے مجھے دیوانہ سا بنا دیا۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہیں ڈھونڈتا رہتا اگر تم نہ ملتی، مگر آج جب ملی ہو تو تمہیں ایک پل کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ باقی باتیں ہم گھر جا کر کریں گے۔ عالیہ کو اسپتال سے چھٹی ملی، ان کا بچہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ گھر کے لیے نکلی۔ گھر میں سواگت کرنے کے لیے فاطمہ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی تیاریوں میں طاہرہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ طاہرہ کو یوں خوش دیکھ کر نسیمہ بیگم کہنے لگیں، واحد صاحب چلیں، یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی کہ طاہرہ نے بھی خوشی سے سب کچھ سویکار کر لیا ہے، ورنہ بے وجہ گھر کا ماحول خراب ہوتا، اور اگر یہ دونوں سکون کے ساتھ گھر میں رہیں گی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اتنے سمے بعد ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ رہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم پھر سے اسی پرانے دور میں واپس جا رہے ہیں۔ واحد صاحب کہنے لگے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے میرے بچوں کی خوشیوں کو۔ اتنے میں باہر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ دروازے پر سواگت کرنے کے لیے پہنچے۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر جلدی سے شاہد سے بچے کو پکڑا اور کہنے لگی، بھائی یہ تو پھپھی کا لاڈلا ہوگا اور میرے پاس ہی رہے گا۔ ساتھ ہی وہ عالیہ کے گلے لگ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، تمہیں بعد میں دیکھ لوں گی، بہنیں اور دوستیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ فاطمہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی۔ خیر ابھی سب کا موڈ اچھا ہے تو میں کسی کو بھاوک نہیں کرنا چاہتی،
اتنے समय बाद आलिया अपने परिवार में लौटकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और फिर सबको देखकर थोड़ी भावुक हो गई। नसीमा बेगम ने जल्दी से आलिया को गले लगा लिया और कहने लगी, कोई आंसू नहीं, अब सिर्फ खुशियां होंगी। बहुत रो लिया हमने एक दूसरे के लिए। ताहिरा भी अपने दिल पर पत्थर रखकर आलिया को गले मिलने लगी। जाहिर तौर पर सबके सामने तो वो गले मिली, मगर कान में हल्की फुसफुसाहट करते हुए कहने लगी, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी वापस आकर। तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक अब मैं खुद पहुंचाऊंगी। ताहिरा की धमकी सुनकर आलिया तो हैरान सी रह गई, मगर वो उस वक्त तो कुछ नहीं कह सकती थी। उसने गहरी सी नज़र से ताहिरा को देखा, मगर खैर, शाहिद उसे साथ लगाए आगे बढ़ा। आलिया के लिए कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। वो दिल से खुश होती, मगर ताहिरा की बात उसके दिमाग में लगातार घूमने लगी। सोचने लगी कि न जाने वो मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ क्या करेगी। घर में सब लोग आलिया के कमरे में मौजूद थे। ताहिरा कब तक बर्दाश्त कर सकती थी और दिखावा कर सकती थी। वो अपनी तबीयत खराब का बहाना करते हुए सबको अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। जब उसने अपने सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। शाहिद कहने लगा, तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाकर आराम कर लो, थकावट की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। वो कहने लगी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। वो असल में शाहिद को वहाँ से उठाना चाहती थी। नसीमा बेगम शाहिद से कहने लगी, शाहिद बेटा, तुम ताहिरा को कमरे तक ले जाओ, हम लोग आलिया के पास मौजूद हैं। ताहिरा कमरे में चली गई। जब शाहिद उसे लटाकर बाहर आने लगा तो उसने आवाज़ देकर कहा, शाहिद रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, क्या मतलब? तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, हम लोग सब इधर ही हैं। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे पास बैठो। वो मुस्कुराया और वापस मुड़ा और बेड पर बैठ गया। कहने लगा, हाँ बैठ गया, बताओ। वो कहने लगी, बस बैठे रहो यहाँ पर। शाहिद बोला, ताहिरा प्लीज़, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ताहिरा अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोली, सीधी तरह कहो ना शाहिद, अब वो आ गई है तो मैं तुम्हें जहर लग रही हूँ। तुम उसके पास रहना चाहते हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। आज तीसरा दिन हो गया है, तुमने एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं इस बात का। वो कहने लगा, ताहिरा क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरह की नेगेटिव बातें सोचती हो? जानती हो ना आलिया की हालत, बेबी, डिलीवरी, ऑपरेशन, सब कुछ। मैं हॉस्पिटल में था, इसी भाग दौड़ में। कौन सा मैं आलिया के साथ हनीमून पर गया था जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? वो कहने लगी, वो दिन भी दूर नहीं जब तुम उसके साथ ये सब रंगरलियां भी मना लोगे। वो कहने लगा, ताहिरा तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारा ना दिमाग ख़राब है जिसका इलाज कराना ज़रूरी है। वो कहने लगी, अब तो मेरा सब कुछ ही ख़राब लगने लगेगा ना तुम्हें। वो जो आ गई है जिसकी वजह से तुम्हारा हंसना मुस्कुराना सब कुछ ख़त्म हो गया था। कल से गौर कर रही हूँ, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा भी क्या कारनामा उसने अंजाम दे दिया जो तुम लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हो? मेरे लिए तो कभी कोई इस तरह खुश नहीं हुआ। मैं भी तो तुम्हारे बच्चे को पैदा करने वाली हूँ। शाहिद खड़ा हुआ और कहने लगा, ताहिरा तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुमसे बात करने से बेहतर है कि बंदा अपना सर दीवार में दे मारे। तुम खुश हो ही नहीं सकती कभी। वो कमरे से बाहर निकलने लगा, फिर वापस पलटकर कहने लगा, प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखो और इस तरह की बातें मत सोचो। मैं तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रहा। शाहिद चाहता था कि ताहिरा किसी भी तरह घर के माहौल को ख़राब न होने दे। इतने अरसे बाद अगर सबके चेहरों पर इतनी खुशी आई है तो ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए। वक्त यूं ही गुजरता गया। आलिया का बेबी 1 महीने का हो गया था और आज शाहिद को आलिया और बेबी को लेकर हॉस्पिटल जाना था, उनके बेबी का चेकअप कराने के लिए। जब ताहिरा को ये बात पता चली कि शाहिद आज आलिया और बच्चे के साथ घर से बाहर जाएगा तो उसने सोचा यही सही मौका है उन पर वार करने का। ना मैं सामने आऊंगी ना मेरा नाम आएगा। ताहिरा ने कुछ गुंडों से राब्ता किया और उन्हें अपना सारा प्लान समझा दिया। ताहिरा का मकसद आलिया को और उसके बच्चे को अपने रास्ते से हटाना था। वो चाहती थी कि इस बार कुछ ऐसा हो जिससे आलिया जिंदा ही न बचे, न आलिया और न उसका बच्चा। वो इस हद तक गिर गई कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो 1 महीने का मासूम सा बच्चा है। बच्चे का क्या कसूर? कसूर तो आलिया का भी नहीं था। आलिया ने आज तक
कभी भी ताहिरा के बारे में बुरा नहीं सोचा था। मगर खैर, शाहिद नाश्ते से फारिग होकर कहने लगा, आलिया जल्दी से रेडी हो जाना, बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उनके बेटे का नाम अजलान था। जब आलिया कमरे में तैयार हो रही थी, शाहिद उसके करीब गया, उसे अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, तुम अपने कदमों पर सही से उठकर चलने लगी हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आलिया, मैं जिंदगी की तरफ वापस लौटा हूँ, वरना मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बेजान बुत हूँ जो बस सारे काम सर अंजाम दे रहा हूँ। तुम्हारे वापस आने से मेरी जिंदगी की ख्वाहिशें लौट आई हैं, और आज के बाद कभी मुझसे दूर होने का सोचना भी मत। वो आलिया को अपने सीने से लगाए अपने दिल की सारी बातें कह रहा था। आलिया कहने लगी, शाहिद, सच पूछें तो आपसे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं था, मगर जो गुजर गया है उसे भूल जाना ही बेहतर है। शाहिद ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकला। आलिया सहन में आई तो उसे चक्कर से महसूस होने लगे। वो लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बची थी। नसीमा बेगम ने भागकर आलिया को साथ लगा लिया और कहने लगी, क्या बात है आलिया, तुम ठीक तो हो ना? वो कहने लगी, जी मैं ठीक हूँ हुमानी जान। वो कहने लगी, नहीं शाहिद, मुझे आलिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम एक काम करो बेटा, वैसे भी अजलान की तो दो माएँ हैं, आलिया जाए या ताहिरा, बात तो एक ही है ना? क्यों ताहिरा? एक काम करो आलिया, तुम घर पर रुक जाओ, शाहिद तुम ताहिरा को ले जाओ। वैसे भी आज इसकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो इसे भी चेकअप कराना है। ताहिरा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। कहने लगी, मगर मेरी अपॉइंटमेंट तो थोड़ी लेट है ना? शाहिद कहने लगा, तो क्या हुआ, हम थोड़ी देर साथ में समय बिता लेंगे इसी बहाने। वो मुस्कुराकर आलिया की तरफ देखकर बोला, आलिया अगर तुम्हें बुरा न लगे, क्या मैं ताहिरा को साथ ले जाऊं? आलिया कहने लगी, जरूर शाहिद, वैसे भी अरजलान जितना मेरा बेटा है उतना ताहिरा का भी है, क्यों ताहिरा? ताहिरा झूठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहने लगी, जी। शाहिद कहने लगा, चलो जल्दी से। वो कहने लगी, शाहिद मैं अपना मोबाइल तो ले आऊं, कमरे में पड़ा हुआ है। वो कहने लगा, मोबाइल की क्या ज़रूरत है, मैं साथ हूं ना, अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लेना। चलो, पहले ही हमें काफ़ी देर हो गई है। ताहिरा को कोई मौका ही नहीं मिला कि वो अपने बिछाए हुए जाल को ख़त्म कर सके। ताहिरा शाहिद के साथ घर से निकल तो गई, मगर गाड़ी में उसकी बेचैनी, उसके माथे पर बार बार पसीना आना, शाहिद जो अपराधियों को दूर से देखकर ही पहचान जाता, इस बार वो अनजान मोहब्बत की आड़ में धोखा खा रहा था। उसके बगल में उसके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन छुपा था और वो उसे ही पहचान नहीं पाया। कहने लगा, क्या बात है ताहिरा, जब से घर से निकले हैं तुम बिल्कुल खामोश हो और चेहरे पर परेशानी जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी जाए। ये बात सुनकर ताहिरा के और होश उड़ गए। कहने लगी, शाहिद आप ना अपनी ये पुलिस वाली बातें बाहर ही रखा करें, परिवार पर ना आजमाया करें। कहने लगा, क्या बात है बताओ ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। वो कहने लगी, मैं खुश हूँ। उसकी गोद में अजलान था, मगर ताहिरा ने एक बार भी अजलान की तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। गाड़ी थोड़ी सी ही दूर पहुंची, जहां शाहिद की गाड़ी के आगे कुछ गुंडे रुके, जिनके चेहरे ढके हुए थे। शाहिद ने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली और गाड़ी को तेज गति में वहां से भगाने की कोशिश करने लगा। जो भी था वो उस वक्त अकेला था, और जब किसी भी मर्द के साथ उसके घर की औरत होती है ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और शाहिद के साथ उस वक्त ताहिरा और उसका मासूम सा बच्चा था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी जोखिम में पड़े, इसलिए उसने जल्दी से गाड़ी भगानी चाही, मगर उन गुंडों में से किसी एक ने गोली चलाकर गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया और गाड़ी वहीं लड़खड़ाते हुए रुक गई। शाहिद घबराया भी, मगर उसने मौके को संभालने की पूरी कोशिश की। जैसे ही शाहिद गाड़ी से उतरा, अपनी पिस्तौल को उनके सामने करते हुए कहने लगा, कौन हो तुम लोग और जानते हो मुझ पर हमला करने का अंजाम क्या होगा? मैं एसपी शाहिद हूँ, चाहूँ तो तुम लोगों को अभी चीथड़े उड़ा दूंगा। उनमें से एक आगे बढ़ा और कहने लगा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, इसलिए रास्ते से हट जाओ। शाहिद और भी ज्यादा हैरान हुआ, कहने लगा, तो फिर किससे मतलब है तुम्हें? उस आदमी ने अपने साथियों को इशारा किया और वो गाड़ी पर गोलीबाजियां करने लगे। ताहिरा उन गुंडों को रोक भी नहीं सकती थी। शाहिद ने कहा, ताहिरा तुम गाड़ी में नीचे झुको, उन लोगों को मैं खुद संभाल लूंगा। शाहिद ने गोली चलाई, एक दो लोग उनमें से घायल भी हुए। उसने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ताहिरा ने सोचा कि मैं गाड़ी से बाहर निकलकर इनको इशारा कर दूंगी कि ये रुक जाएं और हमला ना करें,
मगर जैसे ही ताहिरा बच्चे को सीट पर रखकर गाड़ी से बाहर निकली, एक गोली सीधी आकर उसके सीने में लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गई। ताहिरा को जमीन पर गिरा देखकर शाहिद सब कुछ छोड़ते हुए भागा। कहने लगा, ताहिरा ताहिरा अपनी आंखें खोलो, मगर उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। शाहिद के मुंह से ताहिरा का नाम सुनकर वो गुंडे हैरान हुए कि ये क्या हो गया। उन लोगों ने तो आलिया को मारना था, मगर ताहिरा, वो गोली लगते ही दम तोड़ गई। शाहिद वहां सड़क पर बेसहारा मदद मांगते हुए चीखो पुकार कर रहा था। इतनी देर में पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग उनमें से घायल भी थे। उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, बाकी कुछ फरार हो गए। पुलिस उनको हिरासत में ले चुकी थी। शाहिद ताहिरा को दूसरी गाड़ी में डालते हुए जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने ताहिरा को जांच करते हुए कहा, हमें माफ कीजिए, ये वो शब्द थे जिन्होंने शाहिद के सर पर बिजलियां गिराई थीं। वो अकेला अस्पताल में अपने नन्हे से बच्चे को गोद में उठाए रोने लगा। शाहिद दहाड़ते हुए बोला, ये जिसने भी किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल वो सदमे में था और ताहिरा की लाश लेकर घर पहुंचा। घर के बाहर जब एम्बुलेंस की आवाज़ आई तो सब लोग परेशान हो गए। वाहिद साहब कहने लगे, या खुदा खैर करे, ये कौन हो सकता है। वो जल्दी से भागे और मेन गेट तक पहुंचे। जब आगे से स्ट्रेचर पर ताहिरा की लाश ऊपर सफ़ेद चादर उड़ाई हुई थी, वो लेकर अंदर प्रवेश हो रहे थे तो सब हैरान और परेशान थे कि ये कौन है। नसीमा बेगम भागते हुए आईं और कहने लगी, तुम लोग गलत पते पर आ गए हो, ये किसे लेकर आए हो। वो लोग खामोश ताहिरा की लाश को घर के आंगन में रखते हुए खामोशी से साइड पर हुए। जब शाहिद, जिसके कपड़े खून में सने, वो अपनी गोद में रोते हुए अजलान को उठाए हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। वाहिद साहब शाहिद को हिलाकर कहने लगे, शाहिद ये सब क्या हो रहा है। वो कहने लगा, पापा, शायद हमारी खुशियों को नज़र लग गई है। जब भी हमें लगता है कि हम खुश हैं, तभी इस तरह कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। वो दीवार के साथ टेक लगाए वहीं बैठ गया। फातिमा ने शाहिद की गोद से अरसलान को पकड़ा, जो लगातार रोए जा रहा था। वो उसे चुप करवाने लगी। सब पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। ताहिरा की मौत हो गई थी। उस हादसे में किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो घर से निकली थी। अब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। घर में सब रोते बिलखते रहे। ताहिरा के जनाजे की नमाज के बाद शाहिद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर वो लोगों को हिरासत में ले चुके थे। उसने सोचा कि जब तक वो सच्चाई की जड़ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो आराम से नहीं बैठेगा। जैसे ही वो थाने पहुंचा, उसने जल्दी से कहा कि ताला खोलो। शाहिद का खून उबाल मार रहा था। वो जो घायल उनकी हिरासत में थे, उनको कॉलर से पकड़ा और लगातार उन पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। कहने लगा, जो बात है पहले से आखिर तक मुझे सच बताओ, वरना इतना मारूंगा कि तुम लोग मौत भी अपने मुंह से मांगोगे, लेकिन तुम लोगों की मौत नहीं आने दूंगा। तुम तड़पोगे। शाहिद ने जिस कदर उनको मारा, उनकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो और शाहिद का कहर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शाहिद ने कहा, अपने बाकी साथियों के बारे में बताओ, और ये सब तुमने किसके कहने पर किया। ये कोई हादसा नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। किसके कहने पर ये सब किया। वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, हम बस जो आदेश मिलता है हम वो ही करते हैं। हम नहीं जानते कि ये सब किसने करवाया। शाहिद कहने लगा, तो तुम्हें किसने आदेश दिया। उन्होंने अपने बॉस का एड्रेस और नंबर सब कुछ दे दिया। शाहिद फौरन पुलिस को आदेश देते हुए कहने लगा, इस शहर का चप्पा चप्पा जांच लो और मुझे अगले 1 घंटे में वो सारे लोग यहाँ मौजूद चाहिए। कुछ ही देर में वो पुलिस की हिरासत में थे और उनको शाहिद के आगे पेश किया गया। शाहिद उस वक्त ऐसी हालत में था कि वो किसी पर रहम करने का सोच भी नहीं सकता था। पहले तो उसने अपना खूब गुस्सा उतारा और फिर कहने लगा, बताओ ये सब किसने कराया। कौन है मेरा दुश्मन। आखिर मैं भी तो जानूं उस आदमी को। शाहिद के आगे हाथ जोड़े और कहने लगे, हम लोग लालच में आ गए थे। हमें इतनी बड़ी रकम की पेशकश की गई जितनी हमने सारी जिंदगी में भी चोरी और डकैतियां करके नहीं कमाई थी। वो कहने लगा, ये पेशकश दी किसने है। वो कहने लगा, आपकी पत्नी ने। शाहिद एकदम बौखला कर रह गया। वो कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो और मुझे सच सच नाम बताओ। वो कहने लगे, आपकी बीवी ताहिरा मैडम ने हमें पैसे दिए थे कि हम आपके बच्चे को और आपकी बीवी आलिया को मौके पर ही जान से मार दें। शाहिद को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो वहीं कुर्सी पर ढेर हो गया, अपना सर अपने हाथों में पकड़े कहने लगा, ताहिरा कितना समझाता था तुम्हें, इतनी नफरत मत करो। कभी कभी इंसान का गुस्सा उसे ही जलाकर भस्म कर देता है। ताहिरा, तुमने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा
और खुद उसमें गिरकर अपनी जान गंवा बैठी। शाहिद ने इन सबको पुलिस के हवाले किया और कहा कि इन सबको भी बंद कर दो, अभी मैं किसी भी स्थिति में नहीं हूँ। शाहिद घर पहुंचा। वो ऐसे था जैसे उसके वजूद में किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। उसे देखकर वाहिद साहब कहने लगे, शाहिद ये सदमा इतना बड़ा है कि हौसलों से ये जख्म नहीं भर सकता। शाहिद जल्दी से उठा और तेज तेज कदमों से आलिया के पास गया। अजलान को गोद में लेते हुए उसे पागलों की तरह चूमने लगा। कहने लगा, अजलान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। वाहिद साहब कहने लगे, शुक्र करो खुदा का, खुदा ने इस मासूम की जान बचा ली, मगर ताहिरा का दुख इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। वो कहने लगा, पापा, ताहिरा अपने स्वार्थ और अपनी नफरत की भेंट चढ़ी है। वो कहने लगे, क्या मतलब शाहिद, ये तुम क्या कह रहे हो। वो बोला, पापा, मैं ताहिरा के साथ इतना समय रहा और जानते हो मैं हमेशा अपराधी को उसकी शक्ल से पहचान जाता हूँ कि ये अपराधी है, मगर मैं ताहिरा को क्यों नहीं पहचान पाया। ताहिरा नफरत में इस हद तक गिर सकती है, ये मैंने नहीं सोचा था। पापा, उसे जैसे ही पता चला कि मैं और आलिया अजलान के साथ हम लोग बाहर जा रहे हैं, जानते हो उसने क्या हरकत की। उसने आगे जाल बिछाया रास्ते में हम पर हमला करवाने के लिए, जिसमें उसने गुंडों से कहा था कि वो आलिया को और अजलान को मौके पर ही ख़त्म कर दें। शाहिद की एक एक बात सुनकर सबको ऐसे था जैसे उनके कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी। वो कहने लगा, पापा, आलिया ने तो कभी आज तक उसे कोई दुख नहीं पहुंचाया था। चलो मान लिया कि उसे आलिया से जलन थी, मगर इस मासूम का क्या दोष था। अजलान को अगर कुछ हो जाता तो वो खुद भी तो माँ बनने वाली थी। कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती है, इतनी स्वार्थी हो गई पापा। और देखें, उसने जो गड्ढा आलिया के लिए खोदा था, वो खुद उस गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा बैठी। अगर ताहिरा चाहती तो हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकती थी, खुशी खुशी हर रिश्ते को निभाती, तो क्या मैं उसके हकों को हक तलाफी करता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मैंने तो सोच लिया था कि दोनों को उनके हिस्से की सारी खुशियां दूंगा, मगर जो खुदा को मंजूर होता है होता तो वही है। वाहिद साहब ने एक ठंडी सांस ली और शाहिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे, शाहिद, कुछ हादसे इंसान की जिंदगी में खुदा की तरफ से होते हैं और कुछ इंसान के खुद के किए होते हैं। खैर, ऊपर वाला ताहिरा की रूह को शांति दे और तुम खुद को संभालो। आलिया जो लगातार रो रही थी, शाहिद कहने लगा, तुम क्यों रो रही हो। वो कहने लगी, काश मैं आपको मिलती ही ना, मैं वापस ही ना आती। ताहिरा के साथ ये हादसा होता ही नहीं, इसी वजह से तो मैं आप सबकी जिंदगियों से निकल गई थी। नसीमा बेगम ने आलिया को साथ लगा लिया। कहने लगी, आलिया, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है, इसलिए बेटा तुम खुद को कसूरवार मत समझो। ऊपर वाला मेरे बच्चों की जिंदगी में इतनी खुशियां दे कि उन्हें अपने अतीत के दुख याद करने के लिए उनके पास समय ही ना बचे। समय यूं ही गुजरता रहा। शाहिद और आलिया की एनिवर्सरी थी। घर में बहुत टाइम बाद सबने खुशी से इस मौके को मनाया और उनकी खुशी में उनका प्यारा सा बेटा अजलान उनके साथ था। शाहिद आलिया को साथ लगाए कहने लगा, तुम मेरे लिए वो महरम हो जो मेरे हर गहरे से गहरे जख्म को भर देती है। तुमने आज तक मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, कभी सख्त लहजे से मेरी तरफ देखा भी नहीं। आलिया शाहिद के सीने में मुंह छुपाए कहने लगी, शाहिद, आपकी मोहब्बत ने मुझे पूरा कर दिया है। मुझे कभी कोई आपसे शिकायत हुई ही नहीं और ना कभी आपने ऐसा मौका दिया। आई लव यू सो मच। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।